Everyone. Is my voice audible? Yes, it's audible, sister. Okay, thank you. Let's start the reading session with a short meditation. Find a comfortable position, close your eyes, and take a few deep, steady breaths. Inhale deeply through your nose, exhale softly through the mouth. Let your body soften. Imagine roots extending from your body deep into the earth. Feel the solid support beneath you. You are safe, held, and timeless. With your next inhale, visualize a soft golden light entering your body, filling you with warmth and vitality. This light carries the essence of youth, playfulness, freshness, and possibility. With every exhale, release heaviness, tiredness, and rigidity. Imagine yourself standing in a beautiful garden. Around you, flowers bloom endlessly, birds sing joyfully, and the air is fresh and alive. You feel ageless. Here, your body light, your spirit free. Repeat silently, I am timeless. My spirit is forever young. My heart is forever open. Bring awareness to your face. Soften it into a gentle smile. Smile with your eyes. Notice how this small act awakens a youthful spark inside. Feel your shoulders loosen, your chest expand, your breath become freer. See the number of age, whatever they may be, dissolving into light. In their place arises a sense of flow, freedom, and presence. Here in this moment, you are neither old nor young. You are simply alive, fresh, and full of possibility. Rest your attention on your heart. Whisper gently to yourself, every day I renew myself. My energy is fresh. My heart is light. My soul is ageless. Take a few slow breaths. Feel the glow of youth within you. And when ready, gently open your eyes. Okay, everyone, now let's start the reading session. Anika sister, please share the screen. So today we will start from deliver yourself from all your fears. Use this perfect formula for casting out fear. I sought Lord, and he heard me and delivered me from all my fears. Psalm
34 to 4. The Lord is an ancient word meaning law, the power of your subconscious mind. Learn the wonderful wonders of your subconscious and how it works and functions. Master the technique given to you in this chapter. Put them into practice now, today. Your subconscious will respond and you will be free from all fears. I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. तो यहाँ ऑथर हमें समझाना चाह रहे हैं कि ये जो लॉर्ड वर्ड है उसका मतलब है लॉ. लॉ मीन्स व्हाट? द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड. तो वो ये समझाना चाह रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड के वंडर्स को हम पहचाने और उसे यूज करें और आज ही यूज करें, और ताकि यूज करके हम अपने फियर्स से खुद को फ्री कर लें. और कैसे करना है कि सबकॉन्शियस माइंड को बस बोलना है एंड सबकॉन्शियस माइंड अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा और हमें फ्री कर देगा. सो अब हम स्टार्ट करेंगे. स्टेप दिस वे टू फ्रीडम फ्रॉम फियर. डू द थिंग यू आर अफ्रेड टू डू. नंबर 1 में ऑथर क्या बोल रहे हैं? वो चीज करने लग जाओ जिससे आपको डर लगता है. एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टेन. Say to yourself and mean it, I am going to master this fear, and you will. Fear is a negative thought in your mind. Supplant it with a constructive thought. Fear has killed millions. Confidence is greater than fear. So, यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं? हमें लगता है कि डर बहुत बड़ी चीज है, उसको कैसे मुकाबला करेंगे, लेकिन ऑथर ये समझा रहे हैं कि कॉन्फिडेंस जो है वो फियर से ग्रेटर है. एंड अब उन्होंने कहा नथिंग इज मोर पावरफुल देन फेथ इन गॉड एंड द गुड. हमें फेथ के ऊपर ज्यादा भरोसा रखना है, फियर से घबराना नहीं है. बिट 3 में ऑथर कह रहे हैं फियर इज मैन्स ग्रेटेस्ट एनिमी. इट इज बिहाइंड फेलियर, सिकनेस एंड बैड ह्यूमन रिलेशंस. लव कास्ट आउट फियर. लव इज एन इमोशनल अटैचमेंट टू द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ. Fall in love with honesty, integrity, justice, goodwill, and success. Live in the joyous expectancy of the best, and invariably the best will come to you. तो यहाँ पे एक वंडरफुल डेफिनेशन हमें लव के बारे में पता चली कि लव इज एन इमोशनल अटैचमेंट टू द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ. तो ऑथर कह रहे हैं fall in love with honesty, integrity, justice, goodwill and success. हम क्यों अपने मन में एक्सपेक्टेंसी खराब का रखते हैं? क्यों डर रखते हैं कि ये हो गया तो वो हो गया तो? उससे अच्छा ऑथर हमें सिखा रहे हैं कि जॉयस एक्सपेक्टेंसी ऑफ बेस्ट में रहें. हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे साथ जो भी होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा. एंड इनवेरिएबली द बेस्ट विल कम टू अस. बिट 4 में ऑथर कह रहे हैं काउंटर एक्ट द फियर सजेशंस विद द ऑपोजिट. ये हमने ऊपर सीखा था. ऑथर ने बताया था कि जैसे ही डर आए उसका ऑपोजिट में हमें तुरंत चले जाना है. सच एज आई सिंग ब्यूटिफुली, आई एम poised, serene and calm. It will pay fabulous dividends. हमें इसके रिजल्ट बहुत ही मजेदार मिलेंगे. Bit 5. Fear is behind amnesia at oral and written examination time. You can over this by affirming frequently, I have a perfect memory for everything I need to know. Or you can imagine a friend congratulating you on your brilliant success on the examination. Persevere and you will win. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए मेजरली ऑथर ने कहा है, उन्होंने कहा कि ये अफर्म करो,
I have a perfect memory for everything I need to you. Or you can also imagine a friend congratulating you on your success for the examination. Bit 6 में, if you are afraid to cross water, swim. In your imagination, swim freely, joyously. Project yourself into the water mentally. Feel the chill and thrill of swimming across the pool. Make it vivid. As you do this subjectively, you will. तो यहाँ पे ऑथर क्या समझा रहे हैं हमें? इमेजिनेशन को इतना रियल बना लो कि आपको फिर माइंड क्या करेगा ना, फोर्स करेगा उसको रियल में एक्शन में लाने के लिए। तो हमें फील करना है, जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने स्विमिंग का, तो हमें फील करना है द चिल, द थ्रिल ऑफ स्विमिंग अक्रॉस द पूल। तो ऑथर कह रहे हैं एज यू डू दिस सब्जेक्टिवली यू विल बी कंपेल्ड टू गो इनटू द वाटर एंड कंकर इट। दिस इज द लॉ ऑफ योर माइंड, क्योंकि जो हम माइंड को बोलते रहते हैं माइंड वो फिर करके दिखाता है, तो इसलिए हमें सोचने पे ऑथर कह रहे हैं। Bit 7, if you are afraid of closed places such as elevator, lecture halls, etc., mentally write in an elevator, blessing all its parts and functions. You will be amazed how quickly the fear will be dissipated. Bit 8, you were born only with two fears, the fear of falling and the fear of noise. All your other fears were acquired. Get rid of them. वो सारे fears हैं ही नहीं, बस हमें acquire कर लिया है अपने किसी व्यक्ति से, कोई situation से, कोई experiences से, तो हमें अब उससे छुटकारा पाना ही है। Bit 9, normal fear is good. अब जैसे आग है तो हमें डर लगना चाहिए कि हमें वहां पे हाथ नहीं डालना है, तो ये एक नॉर्मल फियर है, वो अच्छी बात है। लेकिन अब नॉर्मल फियर इज बैड एंड डिस्ट्रक्टिव। टू कॉन्स्टेंटली इंडल्ज इन फियर थॉट्स रिजल्ट्स इन abnormal fear, obsessions and complexes. To fear something persistently causes a sense of panic and terror. Bit 10, you can overcome abnormal fear when you know the power of your subconscious mind can change conditions and bring past the cherished desires of your heart. Give your immediate attention and devotion to your desire, which is opposite of your fear. ये भी हमने ऊपर सीखा था कि ऑथर ने बोला था कि हमेशा कोई फियर का एक ऑपोजिट डिजायर होता है, तो फियर के डेप्थ में नहीं जाके इमीडिएटली डिजायर के डेप्थ में चले जाना है। दिस इज द लव दैट कास्ट आउट फियर। इस लव से, लव फॉर द डिजायर, वो हमारे फियर को भगा देगा। Bit 11, if you are afraid of failure, give attention to success. If you are afraid of sickness, dwell on your perfect health. If you are afraid of accident, dwell on the guidance and protection from God. If you are afraid of death, dwell on eternal life. God is life, and that is your life now. Bit 12, अच्छा तो बिट 11 में हमने कुछ कुछ एग्जाम्पल सुने। ऑथर ने कहा कि अगर आपको फेलियर से डर लगता है तो आप अटेंशन सक्सेस पे लेके जाओ, और अगर आपको हेल्थ चाहिए तो हेल्थ हमारा डिजायर है, तो अटेंशन हेल्थ पे होना चाहिए, ना कि सिकनेस पे। तो ऐसे एग्जाम्पल्स ऑथर ने दिए। Bit 12, the great law of substitution is the answer to fear. Whatever you fear has its solution in the form of your desire. If you are sick, you desire health. If you are in the prison of fear, you desire freedom. Expect the good. Mentally concentrate on the good and know that your subconscious mind answers you always. It never fails. So this is important. Subconscious mind एक एकदम वफादार फ्रेंड है जो कभी
कभी फेल नहीं होगा। तो हमें बस कंसंट्रेट करना है गुड के ऊपर, एक्सपेक्ट करना है गुड को ही। 13. The things you fear do not really exist except as thoughts in your mind. Thoughts are creative. This is why Job said, "The things I feared has come upon me. Think good and good follows." 14. Look at your fears. Hold them up to the light of reason. Reason क्या है fear का, वो ढूंढना है. Learn to laugh at your fears. This is the best medicine. तो हमें कितना कितना easy और best medicine मिल गया है. हमें fear से घबरा के डर के मायूस नहीं हो जाना है. हमें खड़े होना है और उस पे हंसना है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक इल्यूशन है. कुछ भी बोल के, अगर माइंड कुछ नहीं भी जवाब दे रहा तो भी हंसना जरूर है लेकिन. 15. Nothing can disturb you but your own thought. The suggestions, statements, or threats of other person have no power. The power is within you. And when your thoughts are focused on that which is good, then God's power is with your thoughts of good. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भगवान का पावर, सुप्रीम का पावर गुड वाले थॉट के साथ जरूर होता है. देयर इज ओनली वन क्रिएटिव पावर एंड इट मूव्स एज हार्मनी. देयर इज नो डिवीजन ऑफ क्वारल्स इन इट. जहाँ पे हम डुअलिटी या झगड़ों का या फिर कुछ किसी का लाइक गुस्सा का, हर्ट का, ये सब पे कंसंट्रेट करते हैं तो उसमें हार्मनी प्रेजेंट नहीं है. और क्रिएटिव एनर्जी जो है वो हार्मनी में मूव करती है. इसलिए जब हम लव का सोचते हैं, गुड का सोचते हैं, तो उस समय क्रिएटिव की भी ताकत उसमें जुड़ जाती है. दिस इज वाई God's power is with your thoughts of good. अब चैप्टर नंबर 20 हम स्टार्ट करेंगे. एंड दिस इज अ वंडरफुल चैप्टर. इसकी हेडिंग लाइन भी बहुत ही अच्छी है. हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर. अब हमने डर को तो भगा दिया है, तो अब डर के बाद हमें बस, और जो एजिंग वाला जो फियर है उसको भी हमें भगा देना है. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड नेवर ग्रोज ओल्ड. इट इज टाइमलेस, ageless, and endless. It is a part of universal mind of God, which was never born and it will never die. कितनी सुंदर बात है कि सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल मैजिक है. क्यों? क्योंकि वो पार्ट है यूनिवर्सल गॉड का. वो हमेशा जुड़ा हुआ है यूनिवर्सल माइंड ऑफ गॉड से. इसलिए क्योंकि भगवान ना कभी जन्म लेते हैं और ना कभी मरते हैं, तो वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एजलेस है, टाइमलेस है, वो ओल्ड नहीं होता. फेटिक फेटिक और ओल्ड एज कैन नॉट बी प्रेडिकेटेड ऑन एनी स्पिरिचुअल क्वालिटी और पावर. हम कोई भी स्पिरिचुअल क्वालिटी या पावर के ऊपर एज नंबर नहीं लगा सकते. पेशेंस, काइंडनेस, वेरिसिटी, ह्यूमिलिटी, गुडविल, पीस, हार्मनी, and brotherly love are attributes and qualities which never grow old. हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं ना, कल हमने काइंडनेस दिखा दिया, आज भी क्यों दिखाए. कल तो हमने इतना प्यार से बात की, आज तो थोड़ा सा गुस्सा कर लिया तो क्या हुआ. लेकिन यहाँ पे वो कह रही कि ये ऐसी क्वालिटीज है जो कभी ओल्ड नहीं होती है. तो हमें वो सबको बढ़ाते जाना है, थकना नहीं है. ये तो हमारी नेचुरल क्वालिटीज है. If you continue to generate these qualities here on this plane of life, you will always remain young in spirit. तो ये है यंग रहने का तरीका. हमें लव को, पेशेंस को, काइंडनेस को, ब्रदरली लव को बढ़ाते रहना है, तो हमारी जो स्पिरिट है वो हमेशा ही यंग रहेगी. I remember reading an article in one of our magazines some years ago
which stated that a group of eminent medical men at the D. Corsi Clinic in Cincinnati, Ohio, reported that years alone are not responsible for bringing about degenerative disorders. कोई एक मेडिकल में कोई रिपोर्ट जनरेट हुई थी सालों पहले कि जो इयर्स है, नंबर ऑफ एज है, वही सिर्फ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर का के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. These same physicians stated that it is the fear of time and not time itself that has a harmful aging effect on our minds and bodies. क्या बोल रहे थे उस रिपोर्ट में? वो रिपोर्ट में फिजिशियंस ने बोला कि टाइम नहीं, बहुत साल हो गए इसीलिए हम बूढ़े हो रहे हैं, नंबर ऑफ एज ज्यादा हो रही है इसलिए हम बूढ़े दिखने लगे हैं, वो नहीं, लेकिन फियर ऑफ टाइम, हमारे अंदर जो फियर है वो एजिंग इफेक्ट डालता है माइंड के ऊपर भी, बॉडी के ऊपर भी. And that the neurotic fear of the effects of time may well be the cause of premature aging. ये fear ही premature aging को लेके आता है. During the many years of my public life, I have had occasion to study the biographies of the famous men and women who have continued their productive activities into the years well beyond the normal span of life. Some of them achieve their greatness in old age. तो ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं मेन और विमेन के, जिन्होंने नॉर्मल स्पैन ऑफ लाइफ के बियॉन्ड जाके कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस, सक्सेस, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज अपने लाइफ में करके दिखाए हैं. तो क्या कह रहे हैं ऑथर? सम ऑफ देम अचीव देयर ग्रेटनेस इन ओल्ड एज. At the same time, it has been my privilege to meet and to know countless individuals of no prominence who, in their lesser sphere, belonged to those hardy mortals who have proved that old age of itself does not destroy the creative power of mind and body. वो कह रहे हैं कि उन्होंने काउंटलेस इंडिविजुअल से भी ऐसे बातचीत करी है, उनके सामने वो आए हैं जिन्होंने ना ये प्रूव किया है कि ओल्ड एज क्रिएटिविटी ऑफ माइंड एंड बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करती है. अब है थोड़ा सा सिस्टर, हाँ, ही हैड ग्रोन ओल्ड इन हिज थॉट लाइफ. हाँ, हाँ जी, थोड़ा सा नीचे कीजिए ना. A few years ago, I called an old friend in London, England. He was over 80 years of age, very ill, and obviously was yielding in his old to his advancing years. ऑथर यहाँ पे अपने कोई ओल्ड फ्रेंड का एग्जाम्पल दे रहे हैं. उनसे वो बातचीत कर रहे थे तो पता चल रहा था कि जो फ्रेंड है वो एडवांस करे हैं ओल्ड एज में. एंड कन्वर्सेशन में ये रिवील हुआ कि उनके जो फ्रेंड है वो फिजिकल वीकनेस, फ्रस्ट्रेशन, ये सब से गुजर रहे हैं. एंड अ जनरल डेटीरियोरेशन ऑलमोस्ट अप्रोचिंग लाइफलेसनेस. उनमें बिल्कुल लाइफ दिख ही नहीं रही थी वो कन्वर्सेशन में. हिज क्राई वॉज दैट ही वॉज यूजलेस एंड दैट नो वन वॉन्टेड हिम. उनका मेन रोना क्या था, वो किस चीज से बहुत उदास थे कि अब मैं यूजलेस हूँ, मेरी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है. विद एन एक्सप्रेशन ऑफ होपलेसनेस ही बिट्रेड हिज लाइफ फिलोसॉफी. वी आर, उन्होंने ना एक फिलोसॉफी बना ली थी, वी आर बोर्न, ग्रो अप, बिकम ओल्ड, गुड फॉर नथिंग एंड दैट्स द एंड. ये उन्होंने फिलोसॉफी बना ली थी, लेकिन ऑथर हमें ये समझाएंगे कि ऐसा नहीं है, एज के साथ ऐसा नहीं है कि एंड होने वाला है. दिस मेंटल एटीट्यूड ऑफ फ्यूटिलिटी एंड वर्थलेसनेस वाज द चीफ रीजन फॉर हिज सिकनेस. ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड ओनली टू senescence
and after that nothing. Indeed, he had grown old in his thought life, and his subconscious mind brought about all the evidence of his habitual thinking. तो ऑथर ये बता रहे हैं कि वो अपने थॉट लाइफ में ओल्ड हो चुके थे, एंड क्योंकि थॉट लाइफ उनकी ओल्ड के तरफ ही फोकस कर रही थी, तो सबकॉन्शियस माइंड भी वही सब एविडेंस उनके सामने ला रहे थे, क्योंकि हैबिचुअल थिंकिंग ही ओल्ड एज की थी। तो अब एज इज द डॉन ऑफ विजडम। ये कितनी ब्यूटीफुल लाइन है कि एज एक विजडम का भोर है, उजियारा है, रोशनी है। एज अंधियारा नहीं है। Unfortunately, many people have the same attitude as this unhappy man. They are afraid of what they term old age, the end and extinction, which really means that they are afraid of life. Yet, life is endless. Age is not the flight of years, but the dawn of wisdom. एज का मतलब ये नहीं है कि बहुत साल बीत गए हैं और थोड़ा ही रह गया है। एज का मतलब है कि अब विजडम की शुरुआत हो रही है। Wisdom is an awareness of the tremendous spiritual powers in your subconscious mind. ट्रेमेंडस स्पिरिचुअल पावर, वो भी छोटी मोटी विजडम नहीं, जस्ट थोड़ी सी एक ट्यूबलाइट वाली या बल्ब वाली रोशनी नहीं, पूरा सूरज जैसी रोशनी। एंड द नॉलेज ऑफ हाउ टू अप्लाई दिस पावर टू लीड अ फुल एंड हैप्पी लाइफ। Get it out of your head once and for all, that 65, 75, or 85 of age is synonymous with the end for you or anybody else. क्या कह रहे हैं ऑथर कि अपने दिल और दिमाग से पूरी तरीके से ये चीज निकाल दो कि जो एज है ना वो एंड के साथ सिनोनिमस है। इस चीज को निकालने के लिए कह रहे हैं। It can be the beginning of a glorious, fruitful, active, and most productive life pattern, better than you have ever experienced. Believe this, expect it, and your subconscious will bring it to pass. हमें भरोसा करना है और उम्मीद रखनी है, सबकॉन्शियस माइंड वही लाके देगा। वेलकम द चेंज। ओल्ड एज इज नॉट अ ट्रैजिक अकरेंस। हम सोचते हैं ओल्ड एज आ गया मतलब बहुत ही बढ़िया, अब तो दिक्कत वाला टाइम आ गया, डिफिकल्ट वाला टाइम आ गया। ऑथर समझा रहे हैं ऐसा नहीं है। वॉट वी कॉल द एजिंग प्रोसेस इज रियली चेंज। ये चेंज है। इट इज टू बी वेलकम joyfully and gladly, as each phase of human life is a step forward on the path which has no end. So we are moving forward to a path जिसका कोई अंत नहीं है। तो हम जो डर जाते कि शायद डिफिकल्ट टाइम आ गया, अब तो हम मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, ऐसा है ही नहीं। Man has powers which transcend his bodily powers. He has senses which transcend his five physical senses. Scientists today are finding positive, indisputable evidence that something conscious in man can leave his present body and travel thousands of miles to see, hear, touch, and speak to people, even though his physical body never leaves the couch on which it reclines. तो यहाँ पे साइंटिस्ट क्या खोज रहे हैं कि कोई एक कॉन्शियस एनर्जी है बॉडी में, कोई एक पॉजिटिव इनडिस्प्यूसिबल एविडेंस दैट समथिंग कॉन्शियस इन मैन। जो कॉन्शियसनेस है मैन के अंदर वो बॉडी से निकलती है और थाउजेंड्स ऑफ माइल ट्रैवल करती है। वो उस चीज को देखती है, सुनती है, टच करती है, इवन तो जबकि वो फिजिकल बॉडी को रियल में लीव नहीं करती, ये बस सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू वो कर रही है।
मैन्स लाइफ इज स्पिरिचुअल एंड इटर्नल। उसको हर चीज फिजिकल बॉडी के थ्रू ही करने की जरूरत नहीं है, वो सबकॉन्शियस माइंड से हर कोई चीज एक्सपीरियंस कर सकती है। He need never grow old for life, or God cannot grow old. The Bible says that God is life. Life is self-renewing, eternal, indestructible, and is the reality of all men. लाइफ जो है वो सेल्फ रिन्यूइंग है, इटर्नल है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। एविडेंस फॉर सर्वाइवल। सिस्टर, ओम हाँ शांति। जी। हेलो, हाँ जी, आई थिंक हम यहीं तक कर सकते हैं आज। थैंक यू अच्छा सो अच्छा। मच। हाँ जी। थैंक यू सो मच सिस्टर। पर्सनली मुझे आज सबसे अच्छा ये पॉइंट लगा कि आपके गुड थॉट के साथ गॉड की पावर होती है। सेकेंडली मुझे ये भी डेफिनेशन बहुत अच्छा लगा लव का, कि लव इज एन इमोशनल अटैचमेंट और ऑफ गुड थिंग्स इन आवर लाइफ। इसलिए हम इमोशनली बहुत अटैच हो जाते हैं जो चीजें हमें प्यारी लगती है। तो इसलिए ऑथर ने समझाया कि लव करो सक्सेस को, लव करो इंटीग्रिटी को, ऑनेस्टी को। तो वो फिर इमोशनली हम अटैच हो जाएंगे वो सब चीजों से, और वो सब चीजें ही फिर अट्रैक्ट होने लगेगी। तो ये मेरा पर्सनल है, लव वाला डेफिनेशन मुझे बहुत पसंद आया। बाकी प्लीज आप लोग भी बताइए। तेजल सिस्टर, अनुराधा सिस्टर, अनिका सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। हाँ जी तेजल सिस्टर, ओम शांति। वेल आपने सारे इम्पोर्टेंट टेक मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे बता दिया, बट मैं सिर्फ एक एडिशन करना चाहूंगी कि वो जो लाइन थी, नथिंग इज मोर पावरफुल देन फेथ इन गॉड एंड द गुड। ये हाँ आज की जी। कैप्स लाइन मतलब काफी इम्पोर्टेंट की। आपका फेथ सबसे बड़ा है आपके डर से। अगर आपको फेथ है हाँ। तो आपका डर आप भगा सकते हैं, मतलब दूर कर सकते हैं प्रैक्टिस से। यस यस, वेरी ट्रू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इसलिए बाबा भी हमेशा निश्चय निश्चय के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। अनुराधा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। ओम। ओम शांति सिस्टर। आज का क्लास तो बहुत ही अच्छा था। या थैंक इट यू। वाज वेरी नाइस। और आपने जो ये स्टे यंग फॉरएवर, ये जो नया सीरीज आपने स्टार्ट किया, तो ये मुझे एक फर्स्ट लाइन ही बहुत अच्छी लगी कि आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड कभी भी ओल्ड होता ही नहीं, टाइमलेस है, एजलेस है, एंडलेस है। तो यही ज्ञान, अ, ये ये एक लाइन ही है। आई मीन, इसका ही विस्तार है सारा ज्ञान कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या आखिर। मतलब हम अपने सोल की जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं, जैसे ये लोग सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, हम लोग इसे आत्मा कहते हैं। पर है तो एक ही चीज है कि ये ओल्ड एज या ऐसे कुछ, ये कोई भी उसका कोई बाधा नहीं है। ये लाइक फॉरएवर है, इटर्नल एनर्जी है। तो यही मुझे अच्छा लगा आज का। हाँ जी तेजल सिस्टर, थोड़ी थोड़ी आपकी आवाज कट रही है, ऐसे समझ में तो आया हमें, बस थोड़ी थोड़ी सी कट रही है। जी। Thank you so much, sister. Beautifully conducted ने session. ऑथर ने कहा कि बेस्ट मेडिसिन इज टू लाफ एट योर फियर्स। तो हंस के ही भगा देना है। लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए ना, नहीं तो। हाँ वो तो है। लेकिन फिर भी लाइक प्रैक्टिकली बड़े बड़े फियर्स का तो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन नॉर्मल डे टू डे में ना मैंने ये अपनाना स्टार्ट कर दिया।
छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, जो शायद उसके लिए बहुत थोड़ी सी ही हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन जो भी मैंने हंसना स्टार्ट कर दिया, तो वो इसलिए शायद मैं उसको रिलेट कर पाई कि हाँ, बेस्ट मेडिसिन इज टू लाफ एट योर फियर्स। हाँ जी सिस्टर, आप कुछ बोल रहे थे ना, प्लीज बोलिए। आप कुछ कह रहे थे ना कि हिम्मत जरूरी होती है। हाँ, मैं वही कह रही थी कि हमारे अंदर बहुत सारे स्टोर्ड इमोशंस है। वो बहुत टर्बुलेंट एनर्जी है, एकदम से हाँ, राइट। एक्सप्लोड हो जाते हैं। तो उस राइट, टाइम राइट। में संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है, हंसना तो दूर की बात है। संतुलन में नॉर्मल रहना ही होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारा एकदम से भरा पड़ा है एनर्जी के रूप में, टर्बुलेंट एनर्जी। तो वो उसे हम्म। खाली करना होता है, साक्षी होकर देखना होता है, बहुत सारा टाइम देना होता है। अपने आप से बातें करते करते एक समय ऐसा आएगा जब आप खुद पर हंसोगे, लेकिन स्टार्टिंग में तो हाँ। मुश्किल होगा। इसके हाँ लिए जी, हाँ बहुत जी। हाँ। तो आपकी जो एनर्जी है, अपना जो मेंटल बैगेज है, उसे पहले धीरे 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 रिलीज करना होता है। तो इट टेक्स टाइम, इवन दो द ऑथर सेज कि ये थोड़े दिन में होगा, लेकिन हर हर किसी की हीलिंग अलग होती है। यस, ट्रू। बट या वेरी। तो पहले तो एकदम से हंस नहीं सकते, उसको धीरे धीरे उसे अंडरस्टैंड करना पड़ता है, जर्नलिंग करना होता है। उसके बाद एक टाइम ऐसे आएगा जब आप सिली लगोगे, तब आप रीजनिंग, क्योंकि आपका रीजनिंग माइंड इज क्लाउडेड बाय इमोशंस, वो भी टर्बुलेंट वाले इमोशंस, तो कैन नॉट डू स्पेशली गर्ल्स, कि वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं कंपेयर टू अदर्स। लड़कियां लाइक बहुत बचपन से ही इमोशन कैरी करते रहते हैं, इसीलिए उनको इतने सारे बॉडी पेन्स होते हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं। ये सारे इमोशंस। जी। वेरी ट्रू। आप कह रहे थे तो मुझे ऑथर की एक बात याद आ रही थी कि उन्होंने फॉरगिवनेस वाले चैप्टर में कहा था कि हमेशा जब भी जिनसे गलती हुई है उनको याद करके बोलना, पीस टू बी योर्स, पीस टू बी योर्स। तो धीरे धीरे वो नथिंगनेस में बदल जाएगा। तो जैसे कि आप ये कह रहे थे कि धीरे धीरे फियर फिर जीरो हो जाएगा तो हम हंस पाएंगे, तो तब मुझे ये बात याद आ गई। जी। अनिका सिस्टर। हाँ जी, थैंक यू सो मच, ब्यूटिफुली कंडक्टेड सेशन। हाँ जी, सॉरी थैंक आज यू। मैं एक्चुअली थोड़ा ऑक्यूपाइड थी, कोई आ गया था तो मैं पूरा, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, अटेंड नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी। नो प्रॉब्लम सिस्टर, वी रियली अंडरस्टैंड। थैंक यू। आप सेशन में आए हो, आपने वो